Hello friends, good morning. So today we will mm, study linked list, some basic operations on linked list. These are um, adding an element to the front of the linked list, that is prepending an element. Then adding an element at the end of the linked list means appending an element. Then searching for an element. Number 4, inserting after an element. And number 5, removing uh, the front node from the linked list. Okay, so let us begin. So linked list is uh, linked list is defined your using the keyword using struct, by which we use, which helps us to create user defined data type in C and C++. So what is type def? Type def is a reserved keyword in C and C++. It is used to create an additional name. It is used to create additional name for, it is just an additional name for another data type, but does not create a new data type. Basically it is like class in C++, if you have studied C++. Okay, so then we have type def void pointer callback node pointer data. So it is basically to make the traverse function more general. Okay, we can add a function pointer. So this line number 8 is a function pointer that points to a function for linked list node manipulation. So using this we will display, we will traverse and display all the nodes of the linked list, which you will see. Okay, so let us begin. So here it is the most important part, this create function. Create, what does it takes? It takes two things as in argument, in data and node and next. Okay, so linked list has two parts, as we know. Just look at this diagram. One is the data field, another is the next pointer field. Okay, so create, we will from main we will give the data and the next. Okay, and the return type is node pointer. ठीक है, तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? यूजिंग malloc फंक्शन. तो malloc के बारे में आप सभी जानते हैं कि malloc allocates a block of memory. Malloc function can be used to allocate space in memory on the fly during the execution of the program. अच्छा, malloc क्या लेता है? The malloc function has been done using ये क्या एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है in C and C++ में. This function requires the number of bytes to be allocated and returns the base address of the chunk of memory that it allocates. मतलब कितना, दिस फंक्शन रिक्वायर्स द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी एलोकेटेड. जैसे साइज ऑफ नोट, कितना मतलब बाइट्स हम लोग को चाहिए एलोकेट करने के लिए, वो उसका यूजर आर्गूमेंट है. और रिटर्न क्या करता है? द एड्रेस रिटर्न्ड बाय दिस फंक्शन इज ऑलवेज ऑफ द टाइप वॉइड पॉइंटर. तो टाइप क्या है? वॉइड, ये जेनेरिक है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है. तो हम लोग इसको टाइप कास्ट करते हैं यूजिंग, हैंस इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू नोड पॉइंटर यूजिंग द फीचर कॉल्ड टाइप कास्टिंग. सो मैलोक यूज़ करें, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बेसिकली. और ये कहाँ यूज एलोकेट होता है? हीप में एलोकेट होता है. ठीक है, अभी सोचो इफ़ न्यू नोड मीन्स ये न्यू नोड में हुआ, न्यू नोड अगर नल है मीन्स एलोकेट नहीं हुआ, जस्ट इन केस किसी कारण के वजह से, देन it will be printed error creating a new node, then exit. Okay, then we have न्यू नोड टू डेटा. न्यू नोड के डेटा पार्ट में डेटा डाल दो, और न्यू नोड टू नेक्स्ट. न्यू नोड मतलब ये तो तुम जानते हो, ये क्या है? एरो ऑपरेटर है. एरो ऑपरेटर, स्ट्रक्चर एलिमेंट कैन बी एक्सेस, एज यू नो स्ट्रक्चर एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर एलिमेंट कैन बी एक्सेस थ्रू ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर यूजिंग एन एरो ऑपरेटर. तो न्यू नोड टू डेटा में डेटा, न्यू नोड टू नेक्स्ट में नेक्स्ट, और ये रिटर्न कर दो न्यू नोड. अभी देखो इस क्रिएट फंक्शन का ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे. जैसे प्रीपेंड मतलब एडिंग एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? नोड पॉइंटर हेड, देन डेटा. वो सोचो मेन से कॉल हुआ, मैं दिखाऊंगा. ठीक है, तो न्यू नोड पॉइंट क्रिएट, तो से मतलब यहाँ में एक हम लोग हेड पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, जो फ्रंट लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा. तो क्रिएट डेटा हेड. ओके, और ये रिटर्न और क्रिएट हम लोग का न्यू नोड का एड्रेस रिटर्न कर रहा था, तो ये हमने क्रिएट कॉल किया, क्रिएट डेटा हेड, ये क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ. और फिर
मतलब न्यू नोड में एक नया नोड बन गया और हेड में क्या डाल दो, न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। जो ये तो न्यू नोड बन गया ना, लेकिन हेड तो अभी हेड इनिशियली मेन में देखोगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं था, शुरुआत में हेड नल को इंडिकेट कर रहा था, लेकिन यहाँ में सबसे पहला ब्लॉक बनने के बाद हेड अभी न्यू नोड को इंडिकेट करेगा, मतलब हेड में न्यू नोड का एड्रेस रहेगा, रेफर करेगा। ठीक है, अभी ये क्या कर दो, रिटर्न हेड कर दो। अभी सोचो अपेंड करना है, एडिंग ए न्यू नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सोचो अपेंड कैसे करोगे, नोड पॉइंटर, ये भी यही है, मतलब इसमें भी क्रिएट का हम लोग यूज़ करेंगे। नोड पॉइंटर अपेंड, नोड पॉइंटर हेड, INT डेटा। अगर हेड मेरे नल के बराबर है, सोचो मतलब अपेंड मतलब लास्ट में ऐड करना, हेड अगर नल के बराबर है मतलब स्टार्टिंग है, मतलब कुछ भी नहीं है, सो इट विल रिटर्न नल। एल्स अगर ये ऐसा नहीं हुआ देन गो टू लास्ट नोड, नोड के मतलब कर्सर एक टेम्परेरी पॉइंटर है, हाँ टेम्परेरी नोड है, इसमें हम लोग हेड डालो। वाइल कर्सर का वैल्यू, कर्सर टू नेक्स्ट, अगर जब तक नल के समान नहीं होता तो कर्सर में मतलब जो एंड हमको मिला नहीं, कर्सर में क्या डाल दो, कर्सर का नेक्स्ट। ठीक है, अभी ये डायग्राम देख सकते हो, यही है ना। एड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, हाँ यही है, एडिंग एन एलिमेंट। सोचो कर्सर अभी यहाँ है, ठीक है, कर्सर कर्सर का नेक्स्ट मतलब अभी ये सोचो लिस्ट बन चुका है 4 3 2 1, ठीक है, और हमको ऐड करना है 0 एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो कर्सर अभी लास्ट में मेरे को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो इट इज़ शोइंग दैट कर्सर टू नेक्स्ट इज, जब तक कर्सर का नेक्स्ट नल के समान नहीं हो जाता, कर्सर टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कर्सर में कर्सर का नेक्स्ट वैल्यू डालते रहो। ठीक है, ऐसा डालते रहो, और जब ये हो गया कर्सर का नेक्स्ट जो नल के बराबर हो गया, इज कर्सर नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो अगर नल के बराबर हो गया कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, अभी न्यू नोड में क्या कर दो, सोचो ये क्रिएट डेटा नल, देखो मैं बोला था ना क्रिएट का यूज़ होगा बार बार, क्रिएट डेटा नल मतलब जो लास्ट पॉइंटर है, मतलब अगर ये क्रिएट में चाहते हैं हम लोग, इफ़ नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू नल, इफ़ नेक्स्ट मीन्स इट इज़ लास्ट नोड, इफ़ नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू सी हेड इट इज़ इन प्रीपेंड इट इज़ फर्स्ट नोड, इफ़ नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू नल तो वो लास्ट नोड है। तो ये मतलब ये एंड हो गया, न्यू नोड क्रिएट डेटा नल, तो ये नोड पॉइंटर में आ गया, कर्सर के नेक्स्ट में अभी न्यू नोड डाल दो, ये देखो मतलब ये न्यू नोड पॉइंटर नोड में क्रिएट डेटा नल, ये नल को इंडिकेट कर रहा है, और कर्सर के नेक्स्ट में, कर्सर का नेक्स्ट जो आएगा वो लास्ट में चले जाएगा। ठीक है, ओके, देन रिटर्न हेड। नाउ सपोज इंसर्टिंग ए न्यू नोड आफ्टर द प्रीवियस नोड, हाँ इंसर्टिंग ए न्यू नोड आफ्टर द प्रीवियस नोड, इसके लिए हमारे पास ये डायग्राम है, इंसर्टिंग ए न्यू नोड आफ्टर द प्रीवियस नोड। सपोज ये हमारा लिंक लिस्ट है इनिशियली 4 3 2 1 0, तो हमको 5 इंसर्ट करना है 3 के बाद, तो कैसे करेंगे, यही है इंसर्टिंग ए न्यू नोड आफ्टर ए पर्टिकुलर नोड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यही हम लोग देख रहे हैं, वी आर सीइंग दिस ओनली। इफ हेड, सपोज इफ हेड इज इक्वल टू नल, या फिर प्रीवियस भी इक्वल टू नल है, दोनों में से कोई भी, यानी खाली है तब रिटर्न नल, कुछ भी नहीं है तो कहाँ ऐड करेंगे। ओके, देन फाइंड द प्रीवियस, अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन फाइंड द प्रीवियस नोड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड। कर्सर एक पॉइंटर है जो हेड को पॉइंट कर रहा है इनिशियली। ठीक है, यहाँ में ये सबसे पहले कर्सर किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वाइल कर्सर इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस, कर्सर जब तक प्रीवियस के समान नहीं हो सकता, तो प्रीवियस क्या है हमें यहाँ में हमारा, प्रीवियस यहाँ में 3 है। ठीक है, तो कर्सर प्रीवियस यहाँ में 3 है। इफ़ कर्सर इज़ नॉट इक्वल टू प्रीवियस, कर्सर अगर 3 नहीं है तो कर्सर में कर्सर का नेक्स्ट डालते रहो। कर्सर में सबसे पहले क्या था, कर्सर में हेड था, फिर कर्सर में 3 आया, आगे गया। इफ़ कर्सर अगर नॉट इक्वल टू नल है, अगर कर्सर मेरे नल के समान नहीं है, ये मतलब लास्ट नोड नहीं है, तब नोड में मतलब न्यू नोड एक ये करो और क्रिएट कर दो, क्रिएट डेटा और कर्सर नेक्स्ट। देखो फिर से क्रिएट का यूज़ आ रहा है, डेटा एंड कर्सर नेक्स्ट। ये तुम लोग टाइप करोगे, खुद से थोड़ा एनालाइज करोगे, देन यू विल टोटली गेट इट। मतलब नेक्स्ट में ये
नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये कर्सर का नेक्स्ट जा रहा है, ठीक है, कर्सर का नेक्स्ट, ये नेक्स्ट में जा रहा है। देन वी हैव कर्सर का नेक्स्ट में न्यू नोड, कर्सर का नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो, सॉरी देन कर्सर का नेक्स्ट में हाँ न्यू नोड डाल दो, रिटर्न हेड कर दो, नहीं तो नल। अभी ट्रेवर्स के लिए ये देखो, वॉइड ट्रेवर्स नोड पॉइंटर हेड कॉल बैक एफ, ये थोड़ा देखना तुम लोग को, फंक्शन पॉइंटर है ये कॉल बैक एफ, नोड पॉइंटर इक्वल कर्सर इक्वल टू हेड, कर्सर जब तक नल के समान नहीं है एफ कर्सर कॉल करो, कर्सर का वैल्यू नेक्स्ट कर दो। रिमूव फ्रंट, ये तो दिस वन इज़ वेरी इजी, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल के समान है रिटर्न नल, एल्स मतलब खाली है, देन अभी हटाना है। फ्रंट में ये पॉइंटर है, मतलब लोकल वेरिएबल है, तो पॉइंटर वेरिएबल है लोकल, नोड पॉइंटर फ्रंट हेड, और हेड में क्या करो, हेड का नेक्स्ट वैल्यू, फ्रंट के नेक्स्ट में नल डाल दो। इफ फ्रंट इज इक्वल टू, मतलब ये डायग्राम है, रिमूविंग द फ्रंट नोड, सोचो ये है, हाँ ये हम लोग एनालाइज करें तो इफ हेड इज इक्वल टू नल, देन मतलब एक ही नोड है, खाली है, हटा नहीं सकते, मतलब कुछ है ही नहीं, लिंक लिस्ट खाली है, देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। देन नोड पॉइंटर फ्रंट, इसमें क्या, नोड पॉइंटर फ्रंट, इसमें क्या करो, हेड डालो, मतलब हेड का जो हेड तो पहला, सोचो लिंक लिस्ट पूरा है, हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, देन हेड द एड्रेस स्टोर्ड इन हेड इज बीन असाइंड टू नोड पॉइंटर फ्रंट, हेड में अभी क्या करो, हेड का नेक्स्ट डाल दो, ओके, और फ्रंट के नेक्स्ट में जो, मतलब फ्रंट अभी तो पहला एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, फ्रंट के नेक्स्ट में नल डाल दो, तो ये खाली हो गया, फ्रंट अभी यहाँ हो रहा है, मतलब ये लिंक टूट गया है, ठीक है, 5 का जो 4 के साथ लिंक था वो टूट गया। देन इफ फ्रंट इज इक्वल टू हेड, तो नल और फ्री फ्रंट, जो फ्रंट इसको इंडिकेट कर रहा था पहले वाला, उसको हटा दो, फ्री कर दो, ठीक है, और वॉइड डिस्प्ले नोड पॉइंटर एन, इफ एन इज नॉट इक्वल टू नल प्रिंट एफ, मतलब ये डिस्प्लेइंग एन नोड एन अगर नल के समान नहीं है, नोड टू डेटा उसका प्रिंट कर दो। फिर यहाँ में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्चिंग एन नोड, सर्च फॉर अ स्पेसिफिक नोड विथ इनपुट डेटा, रिटर्न्स द फर्स्ट मैच नोड दैट स्टोर्स द इनपुट डेटा, अदरवाइज रिटर्न नल। तो ये सर्च कर रहा है, नो कर्सर पॉइंटर हेड, इफ वाइल कर्सर इज नॉट इक्वल टू नल, just try to analyze it and you will get, means draw with pen and paper, I am not able to show here, you will get, while cursor is not equal to suppose I want suppose take for example this one, suppose we have 4 3 2 1, okay, and you want to search for 3, okay, then what I told, 4 3 2 1, okay, so 4 3 2 1, and suppose I want to search for 4, okay, so suppose I want to search for 3, node pointer cursor means cursor is pointing, whatever information is given, cursor is pointing to head, means head address is given to cursor, while cursor is not equal to null, means we are not getting the last element. If cursor to data is equal to data, okay, then return cursor, not equal to 4, suppose cursor to data, I want to search for 3 na, then cursor to data is cursor to data equal to 3, no, it is first element is 4, it is not equal, so cursor becomes cursor to next, okay, so cursor is becoming cursor to next, so I am pointing to 3 now cursor to data means 3 is equal to 3, yes, then return cursor, okay, so I found, return it. Then void dispose, for void dispose let me take an example, suppose we have linked list 5, just draw it, 5 then 3 then 7, okay, forget the early one, now 5 3 7,
So here we have head pointer, then two temporary pointers, means local variable, local pointer variable, cursor and temp, tmp. Okay. Now head, first of all it came head. Okay, head is pointing to 5, means we have three elements in the linked list, 5 3 7. Okay, so 5 is, head is pointing to 5. Then head is pointing to 5. Okay, is head is equal to null? No, because it is showing, it is indicating next element 3 na. Suppose next element 3's address is 375. Okay, means there is an address, this address is stored in the next part of head. Okay, now head is not equal to null, then do what? Cursor, in the temporary variable cursor put head next, means you just draw it. I am showing in cursor you add 3, means cursor is showing the second variable, that is 3, whose address is, so suppose 3539 na, 5's address is 100, 3's address is 375, 7's address is 591. So 375 is stored in first, then 591 is stored in the second, and in 7's link part it is showing null. Okay, so means you just do it, you will easily get it. While cursor is not equal to null, means in cursor part, cursor is cursor equal to head next, means head next cursor I am 375. Okay, so head next is not equal to head to next, means it is null, so first link is broken. While cursor is not equal to null. Okay, while cursor जब तक null के समान नहीं है, ठीक है, then in the temporary variable put cursor next. Cursor next means here we have 591 is stored in temporary variable. Okay, then free cursor, then cursor is freed. Okay, and means cursor was earlier showing having 375, it is freed. Now we have I will give you a diagram of this. Okay, you will understand better, and it means whatever explanation I am giving a diagram at the end, you will understand it. Okay, so you just go through it, you will understand it. Then we have in the diagram I will show. Okay, so then there you have the program void menu. What we want to do, I have told you: prepend an element, append an element, search for an element, insert after an element, and remove a front node. And -1 is if you give -1 it will be quit. Okay, so int main, this basically means head pointer, it is showing null. Then temp null, temp is type of pointer, it is also showing null. Then we have a function pointer, callback display, it is a function pointer. Okay, so let me just run it. Then this is switch case, as you have already studied in C in previous semester, I guess. So this, so let me just run it. So first I want to prepend an element. What do I want to do? 1. Okay, so please enter a number to prepend. I want to prepend suppose 5. Then enter a command. So what I want to do, I want to again I want to now append an element. Okay, 2. Please enter a number to append 6. Okay, then enter again I want to append an element 2. Append suppose 42. Then this, suppose now I want to prepend an element for 1, I am entering 3. So this is the list 3 5 6 4 2. Now enter a command. Okay, to enter a command. What I want to do, insert after an element, suppose 4. Then after which element I want to insert, suppose 6. Enter the element value I want to insert, 8. So this is the insert. Then
then suppose I want to remove from front node. Okay, so I am giving 5. What I want to means it has removed now, 3 has been removed. Suppose I want to search for an element, suppose 8. For searching I have to give 3, then 8. Yes, it is found. Again I have to suppose search like 0, it is not found. Element with value 0 is not found. Okay, so every operation I have done, prepend, append, search, insert, remove from the front, I have done. So let me do remove from the front. See, this 5 has been removed, so I am giving -1 to quit. Okay, so it is done. Okay, so this is your program basically. Now run it, and I am giving the diagram in that diagram. Okay, so you just try to understand that. Okay, and why why do we use linked list? You might know that because in array we have contiguous memory location, means in linked list there is no continuity. The idea is to drop the contiguous memory requirement so that insertion deletion can be efficiently done. Okay, also there is no need to pre-allocate the space. There is no extra nodes are required. Means basically we have to modify, हमको बस link के साथ खेलना है. We have to play with the links. Okay, so this. Okay, I have done. Okay, so you just run it. Thank you all of you. Thank you so much.